Hello and good morning, students. Welcome to this video lecture series. Dear students, today we will have a thorough practice exercise based on tenses. As you know, students, that we have covered the whole topic tenses. We started with present tense along with all its four types, that is present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. Similarly, followed by past tense. We covered all the four types of past tense, followed by future time or future tense. Alright, students, so right now it is time we assessed our progress. What did I say? It is time we assessed our progress. अब ये टाइम है जब हमें हमारी प्रोग्रेस को असेस करना चाहिए, करना है, हमें इवेल्यूएट करना है कि हम कितना सीख पाए. सो लेट अस नो हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड एंड हाउ मच वी हैव इंटरनलाइज्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेंसेस. गॉट इट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. Tenses practice exercise. So here this exercise is based on tenses, covering all the types of tenses. Alright, so see, it is high time he worked hard. He talked as if know everything. After I take my breakfast, I leave for school. The president arrive in Rajasthan tomorrow. Ram tried to climb Everest for many years before he succeeded in his mission. The next Olympic Games take place in 2023. He stay here till Sunday. She leave before you go to see him. I finish the book by next month. I wished you tell me about it. I live here since 2016. Alright, students. So let us see one by one. It is high time he worked hard. It is high time. Okay, I told you it is time. It is high time. It is time. It is high time. It is about time. Whenever we have phrases like it is time, it is high time, or it is about time, okay, this phrase always takes the second form of the verb. Got it? It is high time he worked hard. So with these phrases, it is time, it is high time, or it is about time, we use second form of the verb. These phrases always take the second form of the verb. That is, these phrases always take past simple tense. Alright, so work, so second form of work, worked. It is high time he worked hard. See here, this is, but this is here V2. So the sense is not in the past. It is high time he worked hard means यह proper time है, अब उसे काम करना ही है, मेहनत करनी ही है. Means at this point, okay, at this moment he must be working hard. Okay, this thing should not be reminded, okay, and this thing must come from within him. Alright, that it is time worked hard. As since your exam dates have been declared, so it is time you studied hard. It is time you studied longer. Alright, it is time you utilized your time. यह वो टाइम है जब आप अपने टाइम का भरपूर यूटिलाइजेशन करो, प्रॉपर उपयोग करो.
गॉट इट, सिंस योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, क्योंकि आपके एग्जाम्स डे बाय डे पास आते जा रहे हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम. ये फ्रेजेस जब भी आते हैं, दीज फ्रेजेस ऑलवेज टेक सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज पास्ट सिंपल टेंस. He talked as if know everything. He talked. This is second form of the verb, and here it is as if. See students, when I was teaching you past tense, okay, we discussed one thing, as if, as though. अगर ये ग्रुप वर्ड्स और ये फ्रेजेस एज इफ और एज दो, इफ यू कम अक्रॉस दीज ग्रुप क्लस्टर और क्लस्टर ऑफ वर्ड्स, यू आर टू यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ दे आर गिवन विथ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस के साथ, फर्स्ट फॉर्म के वर्ब के साथ एज इफ और एज दो आता है तो V2 लगाएंगे. ऑलराइट, विथ प्रेजेंट टेंस. बट यही सेम चीज आती है पास्ट टेंस के साथ. पास्ट टेंस फॉलोड बाय एज इफ और एज दो. देन हियर वी विल यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. गॉट इट? सो सी, ही टॉक्ड, दिस इज पास्ट सिंपल टेंस. एज इफ और ये आ गया हमारा वर्ड ग्रुप एज इफ, तो नेक्स्ट में क्या आएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑलराइट, सो ही टॉक्ड एज इफ ही हैड नोन एवरीथिंग. उसने ऐसी बातें की मानो वह सब कुछ जानता है. एंड सी, ही टॉक्स, अगर यहाँ पे टॉक्स होता, ही टॉक्स एज इफ, वो तो ऐसी बातें करता है. ही, देन ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन इट विल बी हियर सिंपली न्यू. विथ प्रेजेंट सिंपल टेंस as if or as though, then in the next clause we will use second form of the verb. But with past simple tense, as if, as though, then we will use had plus third form of the verb. Got it? So अगर यहाँ पे talks होता तो यहाँ पे ओनली सेकेंड फॉर्म आती, बट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में पास्ट सिंपल है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा. गॉट इट? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ऑलराइट, आफ्टर आई टेक माई ब्रेकफास्ट आई लीव फॉर स्कूल. आफ्टर आई टेक माई ब्रेकफास्ट I leave for school. See, there are two actions. After I take my breakfast, I leave for school. एक तो ब्रेकफास्ट लेना हुआ और दूसरा स्कूल जाना हुआ. Got it? So which action took place first? कौन सा एक्शन पहले हुआ है? After I take my breakfast, I leave for school. ब्रेकफास्ट लेने के बाद स्कूल गए हो या पहले स्कूल जाके आए हो फिर ब्रेकफास्ट लिया है? गो थ्रू इट वंस अगेन. आफ्टर आई टेक माई ब्रेकफास्ट आई लीव फॉर स्कूल. मैंने मेरा ब्रेकफास्ट लिया, इसके बाद मैं स्कूल गया. ऑलराइट, टू एक्शंस. विच एक्शन अकर्ड फर्स्ट? टेकिंग ब्रेकफास्ट. तो जो काम पहले हुआ इसके लिए पास्ट में हम क्या यूज करेंगे? had plus third form of the verb, that is past perfect tense. All right, so past के टू एक्शंस होते हैं. पास्ट के दो एक्शंस में जो भी पहले एक्शन हुआ है, ओके, दैट इज आवर पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट इज had plus third form of the verb. और जो एक्शन बाद में हैपन हुआ है, दैट इज पास्ट सिंपल टेंस. सो वी विल यूज हियर द सेकंड फॉर्म ऑफ द verb. ऑल राइट, सो आफ्टर आई, past perfect tense, had third form, I had taken. After I had taken my breakfast, I left for school. Leave, left.
So second form of the verb, I left for school. Got it? Had verb third form, past action. Okay, when this action happened, then this action took place. Got it? The president arrive in Rajasthan tomorrow. प्रेसिडेंट कल राजस्थान आ रहे हैं या आएंगे. So this is official action, well planned action and going to take place in a very near future. ये एक ऐसा एक्शन है जो well planned है, well scheduled है, well planning हो गया है, सारी अरेंजमेंट्स हो गए हैं और डे भी फाइनल हो गया. क्या? कल ही, बहुत ही निकट भविष्य में आने वाला है. दैट इज ऑल्सो ओनली टुमारो. गॉट इट? सो ऐसे वेल प्लान्ड एक्शन जो नियर फ्यूचर में होते हैं, ओके, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल टेंस. वी यूज फॉर सच एक्शंस प्रेजेंट सिंपल टेंस. ऑल राइट. सो द प्रेसिडेंट अराइव एस. वाई एस? Because the president is the singular. So the president arrives in Rajasthan tomorrow. राष्ट्रपति कल राजस्थान आ रहे हैं या आएंगे. All right. And if president arrives means all sorts of government administrative preparations, plannings, protocol, everything has been ensured. हर चीज़ का टाइम टेबल बन गया, हर चीज़ का प्रोसेस फाइनलाइज हो गया है. प्रेसिडेंट कहाँ आएंगे, कहाँ पर उनका फ्लाइट लैंड करेगा, हु विल बी रिसीविंग दैम, ओके, वहाँ से वो कहाँ कहाँ जाएंगे, एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड. ऑल राइट. सो ऐसे वेल प्लान्ड एक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस. ऑल राइट. राम ट्राई टू क्लाइम एवरेस्ट फॉर मेनी ईयर्स बिफोर ही सक्सीडेड इन हिज मिशन. राम अपने मिशन में सफल हुआ उससे पहले. ट्राइंग फॉर मेनी ईयर्स, बहुत साल से माउंट एवरेस्ट चढ़ने की ट्राई कर रहा था. बिफोर ही सक्सीडेड इन हिज मिशन. बिफोर ही सक्सीडेड इन हिज मिशन फॉर मेनी ईयर्स, trying and trying and trying. Means in the past he started work, and in the past that work, that action, that trying, that struggle, okay, continued over a long period of time in the past, and finally he succeeded. So past में कोई एक्शन बहुत टाइम पहले स्टार्ट हुआ था और बहुत टाइम तक चला. That is past perfect continuous tense. Got it? See, Ram tried to climb for many years. ये हमें बता रहा है that some action was going on for very long time, and here it is already past tense. past simple tense दिया है, means ये इससे भी पहले का काम है. Got it? And something was in continuation. This trying was going on and on and on. So that is past perfect continuous tense. And for perfect continuous tense we use had been V1 ing. So Ram had been trying, all right, to climb Everest for many years. राम एवरेस्ट पे चढ़ने का ट्राई काफ़ी सालों से कर रहा था. बिफोर ही सक्सीडेड इन हिज मिशन. इस मिशन में वो सफल हुआ, इससे पहले वो काफ़ी सालों से इस पर ट्राई कर रहा था. Got it? The next Olympic Games take place in 2023. अगले ओलंपिक गेम्स 2023 में होंगे. देखो ये भी वेल प्लान्ड है, इसका प्लान बन गया है. जिस देश में हो रहा है वहाँ पे प्रिपरेशन शुरू हो गई है. ऑल राइट, दैट इज़ वेल प्लान्ड एक्शन. और वेल प्लान्ड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं. सो द नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस. टैक्स नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी इट इज एस. गेम्स प्लूरल है, बहुत सारे गेम्स होंगे. सो द नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस इन 2023. गॉट इट? व्हाई? बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेल प्लान्ड. ऑल राइट. देन ही स्टे हियर टिल संडे, और ही स्टे हियर टिल नेक्स्ट संडे. संडे तक वह यहाँ रहेगा.
संडे तक वह यहाँ रहेगा। सो उसका रहना अगले संडे तक चालू ही रहेगा। फ्यूचर और फ्यूचर में भी काम उस टाइम तक चलता रहेगा, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सो ही विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे। ऑलराइट, विल बी स्टेइंग क्यों लिखा है? क्योंकि वो संडे तक यहाँ पे रहेगा। सो वी हैव हियर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, ओके, अप टू दैट मोमेंट दिस वर्क विल बी गोइंग ऑन, ये काम चलता रहेगा, उसका रहना संडे तक चलता रहेगा, वो संडे तक यहाँ रहेगा। सो ही विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे और टिल नेक्स्ट संडे। ऑलराइट, शी लीव बिफोर यू गो टू सी हिम। शी लीव बिफोर यू गो टू सी, तुम उसे मिलने जाओ उससे पहले। शी लीव, वह जा चुकी होगी। शी लीव बिफोर यू गो टू सी हिम, जब तुम जाओगे उससे पहले वो जा चुकी होगी। सी, ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके, और ये हमारा किसकी बात कर रहा है? इससे पहले फ्यूचर का, और फ्यूचर में भी ये एक्शन हो चुका होगा, उसका जाना। सो इन फ्यूचर टू एक्शंस टेक प्लेस, सिमिलरली एज इन पास्ट परफेक्ट टू एक्शंस टेक प्लेस, सिमिलरली इन फ्यूचर परफेक्ट टू एक्शंस टेक प्लेस, and whichever the action occurs first, that will go with future perfect, and second action with present simple. Whereas in past perfect, first sentence occurred in past, that is past perfect, and second action occurred in the past, that will be past simple. But here the first action in future, future perfect, and the second action in future, that will remain present simple. So हमें present simple दे रखा है यहाँ पे, so here it will be future perfect. Got it? So she will have left, she will have left before you go to see him. She will have left before you go to see her. तुम उसे मिलने जाओगे उससे पहले वो जा चुकी होगी। Got it? I finish the book by next month. मैं नेक्स्ट मंथ तक बुक फिनिश कर लूँगा, मीन्स आने वाले नेक्स्ट महीने तक मेरा ये काम हो चुका होगा। सो फ्यूचर परफेक्ट। सो आई शैल हैव, आई के साथ शैल लगाएंगे। इफ़ यू विल यूज विल, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आई शैल हैव फिनिश्ड, ये लगाया हमने फ्यूचर परफेक्ट। आई शैल हैव फिनिश्ड बुक, मैंने बुक पूरी कर ली होगी बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक ये काम मेरा पूरा हो चुका होगा। सो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। आई विश्ड यू टेल मी अबाउट इट, मैंने आपको बताया था आई विश, दे विश, इसका मतलब होता है काश ऐसा होता। इनके साथ नेक्स्ट क्लोज में हमारा V2 आता है, बट यहीं पे अगर हमारा आई विश्ड, दे विश्ड आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। गॉट इट? सो हियर आई विश्ड, ये विश्ड है, यू हैड टोल्ड मी अबाउट इट, काश तुमने मुझे इसके बारे में बता दिया होता। ऑलराइट, आई लिव हियर सिंस 2016, मैं 2016 से यहाँ पे रह रहा हूँ। सो in 2016 the work started, the action started and the same action is still going on, अभी भी रहना चालू है, मीन्स present perfect continuous tense. So I have been living here since 2016. Alright students, so see, before you apply the correct form of the verb, you must go through the sentence twice, thrice, 4 times, 5 times until you get the concept
cleared. जब तक आपको वो सारा सेंस समझ में नहीं आ जाए, you are not to apply the verb. Got it? So how can you ensure yourself? You will have to do practice, more and more practice, more and more practice. Alright? Simultaneously you will have to go through tenses so far whatever we have studied, and the more you will read and study, the more your doubts be cleared, okay, and your concepts will be refined. So this is all for today's lecture. Tomorrow we shall have one more practice exercise based on tenses. So dear students, please keep studying, keep revising the things. All right, thank you very much. Goodbye, see you soon.